असम चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। असम में बदल रहा है सियासी समीकरण। पिता के बाद बेटे प्रतीक ने छोड़ी कांग्रेस। पार्टी छोड़ने वालों पर गौरव गोगोई का बड़ा बयान। हिमंता के मिशन 2026 से विपक्ष साफ हो जाएगा। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी चुनावी तैयारियों में लग गई हैं। बता दें कि असम में चुनाव का मुख्य मुकाबला सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी कांग्रेस के बीच है। हालांकि कांग्रेस को राज्य में एक के बाद एक लगातार झटके लग रहे हैं। कांग्रेस के कई नेताओं ने चुनाव से पहले पार्टी को अलविदा कह दिया। वहीं अब असम की मार्गरेटा विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार प्रतीक बोरदोलोई ने भी अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है। बता दें कि प्रतीक बोरदोलोई के पिता प्रद्युत बोरदोलोई ने भी हाल ही में भाजपा ज्वाइन कर ली थी। प्रद्युत बोरदोलोई ने खरगे को पत्र में लिखा, बहुत दुख के साथ मैं कांग्रेस के सभी पदों, खास अधिकारों और प्राथमिक सदस्यता से अपना इस्तीफा दे रहा हूँ। इसी के साथ प्रद्युत बोरदोलोई ने पार्टी के साथ सफर को अलविदा कह दिया। You have been told by the Honorable Chief Minister of Assam and in presence of the President of Assam BJP and my colleagues, I know them, we work together in the parliamentary different fora. And today, probably this is one of the most difficult decisions I have taken in my life. It has not been a pleasant step for me because I had to go through a lot. But then I have taken this step not to seek power because you all know that I am on the second term of my Lok Sabha tenureship and which would last another 3.5 years till 29. But I have decided to give up everything because I need an atmosphere where I can hold my head high and I get my opportunities to develop my personality further and to take Assam in the path of progress, in the path of development. And we should make Assam and an interest of the Assamese people. When I say Assamese, it is a broad-based Assamese concept. So we will take everybody in with us and we would like to excel and take, because we passed through a very tumultuous time, a very difficult times, conflict-ridden times, but we have come a long way and we want to consolidate the future of Assam further. That is my say. हालांकि असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई ने साफ कहा कि सिर्फ 2 साल पहले कांग्रेस ने उन्हें नगांव लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का मौका दिया था और जनता ने उन्हें सांसद चुनकर भेजा। इसी दौरान कांग्रेस ने उनके परिवार के एक अन्य सदस्य को विधानसभा चुनाव लड़ने का मौका भी दिया, जिससे बोरदोलोई परिवार को एक ही समय में लोकसभा और विधानसभा दोनों स्तरों पर प्रतिनिधित्व मिला। इसके बावजूद उन्होंने पार्टी छोड़ने का जो फैसला लिया वो उनका निजी निर्णय है। गोगोई के अनुसार ये चुनाव किसी एक व्यक्ति के आने जाने से बड़ा है। ये चुनाव असम को हिमंत बिस्वा शर्मा के चंगुल से मुक्त कराने और उनकी डर और धमकाने वाली राजनीति से राज्य को आजाद कराने का संघर्ष है। It is an unfortunate decision. Just 2 years ago, the Congress party offered him the opportunity to contest the Lok Sabha ticket from Nagaon. He is a sitting member of parliament. The people of Nagaon voted for him. And in this present election, the Congress party offered an opportunity to a member of his family to contest the Vidhan Sabha elections. So the family at the same time got the opportunity to represent Lok Sabha and has got the opportunity to represent the Vidhan Sabha. Despite that, he took a decision which is his personal decision. This election is much more important than one person. This election is about freeing Assam from the clutches of Himanta Biswa Sharma. Freeing Assam from Himanta Biswa Sharma's politics of fear and intimidation. Freeing Assam from the Mafia Raj that has crept during Himanta Biswa Sharma's tenure. So people of Assam want to see an Assam without Himanta Biswa Sharma as the Chief Minister. With that aim we are working. We have got tremendous support. We are confident of forming the government, and if our current Nagaon Lok Sabha Member of Parliament wants to continue Himanta Biswa Sharma as the Chief Minister, well, that is his decision, which is rather unfortunate.
पिता के बीजेपी में शामिल होने के बाद बेटे प्रतीक ने मार्गेरिटा विधानसभा से अपना नामांकन वापस ले लिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखे एक पत्र में प्रतीक बोरदोलोई ने कहा कि वो पार्टी के प्रति अत्यंत सम्मान और गहरी जिम्मेदारी की भावना के साथ पीछे हट रहे हैं। उन्होंने अपने पिता के राजनीतिक कदम का हवाला देते हुए कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर बने रहना उनके लिए उचित नहीं होगा। उन्होंने कहा कि वे आगे भी पार्टी के सदस्य बनकर रहेंगे और मार्गेरिटा विधानसभा सीट के लिए जो हो पाए करेंगे। प्रतीक बोरदोलोई का नामांकन वापस लेना ऊपरी असम में कांग्रेस के लिए एक और बड़ा झटका लगा है। ऐसा उनके पिता के बीजेपी में शामिल होने के कुछ ही घंटों बाद हुआ। इस घटनाक्रम ने युवा प्रतीक बोरदोलोई के भविष्य को लेकर जोरदार अटकलों को जन्म दे दिया है। कांग्रेस ने अभी तक ये घोषणा नहीं की है कि मार्गेरिटा में प्रतीक बोरदोलोई की जगह कौन चुनाव लड़ेगा। देखना यही होगा कि ये सिलसिला यहीं रुकता है या फिर हिमंता कांग्रेस की तरकश के सारे तीर भाजपा में ले जाएंगे।